morning students, myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 4 in history sections of class 8th. Students, do you know jhum cultivation? Today's topic is jhum cultivator and your chapter name is the life of tribals and the daikus. The life of tribals and the daikus. ओके, अब इस में हम सब लोग सबसे पहले पढ़ेंगे द ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी. ओके, 17th सेंचुरी में हम क्या क्या ग्रुप्स थे उनके बारे में 17th to 18th सेंचुरी में वो हम पढ़ेंगे. ओके, तो हम पढ़ते हैं पहले जूम कल्टीवेटर्स. जूम कल्टीवेटर्स कौन होते हैं, वो कैसे होते हैं, उसके बारे में देखते हैं. ओके, जूम कल्टीवेटर्स वर दी ट्राइबल्स हु प्रैक्टिस्ड क्रॉप. जूम कल्टीवेटर्स वर दी ट्राइबल्स थे. ओके, आदिवासी थे जो क्या कर रहे थे, वो हु प्रैक्टिस्ड क्रॉप कल्टीवेशन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड. छोटी छोटी पैचेस पर, छोटी छोटी एरिया पर लैंड के. ओके, मोस्टली इन फॉरेस्ट. कहां पर बेटा, फॉरेस्ट में. जूम कल्टीवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, जूम कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, इट इज ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर in which the tribal people slash the forest area and burned them and left for 1 to 2 years. After that they grow cereals, vegetables and so on. Okay, it was practiced mainly by the indigenous tribals and in some tribal areas. Okay, it is still practiced in some parts of India like Assam, Meghalaya, Mizoram, Garo and hills of Khasi. Okay, jhum cultivation is also known as shifting cultivation because the movement of cultivators from one patches of land to another. Once the land becomes infertile, जब लैंड जो होती है बेटा आपकी वो इनफर्टाइल हो जाती है, देन इट इज लेफ्ट फैलो. इसको काफी समय तक लेफ्ट करके फैलो कर दिया जाता, छोड़ दिया जाता है. ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज स्टिल प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल्स इन एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, झारखंड, मध्य प्रदेश, नीलगिरी रीजन एंड द डेक्कन. The life of these tribals depend on the produces of the forest and use of forest land for growing crops. Thus, free movement within the forest was required by these tribals to practice jhum cultivators. Okay, students. अब एक टर्म आता है बेटा, ट्राइबल्स पीपल को हंटर्स एंड गैदरर्स कहा जाता था. Why? Because they complete their life cycle by hunting and gathering of fruits. Okay, that's why they are also called hunters and gatherers. Okay, in many regions of India like Odisha, Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, the tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. They were mainly dependent on the forest produce for their existence. Okay, students. Now, some major tribes are the Khons and the Begas. Okay. So, study the Khons. Khons are also known as Khans. Okay, Khans were one of the एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ इंडिया. भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट और एबोरिजिनल ट्राइब्स है. दे इनहेबिटेड द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. ये ज्यादातर
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लाखों सालों से रहते आ रहे हैं। दे वर हंटर्स एंड गैदर्स एंड वेंट आउट फॉर कलेक्टिव हंट्स। ये शिकारी होते हैं एंड कलेक्टिव फ्रूट्स के होते हैं, और क्या करते हैं, दे बाहर निकलते हैं किसके लिए बेटा, कलेक्टिव हंट्स के लिए। नेक्स्ट, दे शेयर्ड फ्रूट्स, ये फ्रूट्स को शेयर करते हैं, एंड फ्रूट्स दे कलेक्टेड, जो वो कलेक्ट करते हैं। दे यूजली कुक्ड फूड विदाउट ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम साल एंड महुआ सीड। वे अपने खाने को साल में और महुआ सीड में बनाते हैं। दे ऑल्सो यूज्ड मेडिसिन प्लांट्स फॉर क्योरिंग डिसीजेस एंड सोल्ड दीज प्रोड्यूस इन द मार्केट। द लोकल वीवर्स, लेदर्स, वर्कर एंड क्लोथ डायर्स। कौन कौन से लोकल वीवर्स जो होते हैं, लेदर वर्कर एंड क्लोथ डायर्स, टर्न्ड टू द खोंड व्हेन दे needed to supply of kusum and palace flower for coloring leather and clothes. Okay students, now another tribe is Begas. The Begas tribe are found in Madhya Pradesh. The Begas tribes are found in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Jharkhand and Chhattisgarh area of India. Okay, they were mostly found in Mangala district of Madhya Pradesh. They were mostly found in Mangala district of Madhya Pradesh. They practiced slash and burn cultivation. They also collected leaves, honey roots and tubers from the forest and hunted small wild animals. Okay, sure. They were free spirits and were reluctant to work for others. They saw themselves as the original inhabitant of the forest and were content to survive only on forest produce. Okay? They themselves as the original inhabitants. ये अपने आप में कैसे होते हैं, ओरिजिनल inhabitants हैं, ठीक है, किसके हैं, फॉरेस्ट के। एंड वर कंटेंट टू सर्वाइव ओनली ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये केवल और केवल किस पे सर्वाइव करते हैं बेटा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर। दे वर रेक्लूसिव होते हैं, ठीक है, रेक्लूसिव मीन्स सॉलिटरी लाइफ। दे हैव सॉलिटरी लाइफ एंड डिड नॉट मिक्स अप मच विद द पीपल ऑफ अदर रीजन्स। ये अदर रीजन्स के पीपल के साथ मिक्स ज्यादातर नहीं होते हैं। ओके, नाउ प्रैक्टिसेस के बारे में आती हैं। दीज प्रैक्टिसेस मेड द ट्राइबल मेनली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल्स। ये प्रैक्टिसेस जो होती हैं इनकी, किनकी, ट्राइबल पीपल्स की, ये उनको फॉरेस्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट बनाती हैं। दे बार्टर्ड दीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ग्रेन्स। ये अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ग्रेन्स में, अनाजों के बदले में, एंड थिंग्स दे नीडेड इन देयर डे टू डे लाइफ, जो उनको जरूरत होती है उसके बीच में बार्टर करते हैं। बार्टर मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन कमोडिटी। ओके, गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज करना ही बार्टर सिस्टम कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अदर थिंग्स वर ब्रॉट अबाउट ऑफ द वेजेस दैट अर्नेड डूइंग ऑड जॉब्स। ये अपनी ऑड जॉब्स करके थोड़े बहुत वेजेस कमाते हैं। When the supply of the forest produce shrank, जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सप्लाई जो होती है श्रैंक कर जाती है, they were jobless, उनकी नौकरी चली जाती है। एंड wandered in search of work, ये इधर उधर भटकते रहते हैं बेचारे, कहाँ पर, वर्क की तलाश में। Some did odd jobs in the around their village like carrying loads and pulling roads. ओके, उनको कुछ को गांव में जगह मिल जाती है काम करने की, जैसे बोझा उठाने की, एंड बिल्डिंग रोड्स, सड़क के निर्माण की। वाइल अदर वर्क इन लेबर्स इन द फील्ड ऑफ पीजेंट्स, और बहुत से लोग किसानों के खेत में लेबर की तरह काम करते हैं। दीज ट्राइबल्स वर डिपेंडेंट एंड हैड टू इंटरेस्ट फ्रीक्वेंटली विद द आउटसाइड ट्रेडर फॉर गेटिंग सप्लाई नॉट फाउंड इन द हेड फॉरेस्ट। जब इनको सप्लाई फॉरेस्ट से नहीं मिलती है तो इनको आउटसाइड ट्रेडर्स से उनके ऊपर इंटरेक्ट रहना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय दीज ट्रेडर्स हु सोल्ड गुड एट हाई प्राइसेस। ओके, इनको
उनके ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इसलिए क्योंकि ये अपने फॉरेस्ट को तो सस्ते दामों में बेच देते हैं, लेकिन वो ट्रेडर्स जो होता है हाई प्राइस पर इन सभी चीजों को बेचता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट द मनी लेंडर ऑन द अदर हैंड, जो सूदखोर होते हैं, जो पैसे देने वाले होते हैं, कर्ज देने वाले, ऑन द अदर सप्लाइड देम विद कैश ऑन लोन, ये कैश लोन कराते हैं टू मीट देयर नीड्स। द इंटरेस्ट चार्ज ऑन दीज लोन्स वर वेरी हाई, इनके इंटरेस्ट चार्जेस जो होते हैं बहुत वेरी हाई होते हैं। सो दीज ट्राइबल गॉट इनटू ए विशियस साइकिल ऑफ डेट, और ये ट्राइब्स जो होती हैं लगातार कर्ज के चक्कर में फंसते चले जाते हैं, विच कॉस्ट देम एक्यूट माइजरी एंड पॉवर्टी, जो उनको बहुत ज़्यादा गरीबी और कंगाली में ले जाती है। ओके, नेचुरली द ट्राइबल स्टार्टेड बियरिंग ग्रेजेस अगेंस्ट द मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एंड सॉ देम डाइकूस एंड ईविल आउटसाइडर। स्टार्टिंग में क्या थे, ट्राइबल ने उन्होंने ये मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के खिलाफ काम करते थे, जिनको डाकू कहते थे, ठीक है, या फिर ईविल आउटसाइडर कह देते थे, लेकिन धीमे धीमे ये इनके लाइफ का पार्ट बन गए। ओके, सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, do all the questions of practice zone 1 in your notebook and send me to my WhatsApp number in your SST group. Till then, we will meet you in next another video, and keep learning, keep enjoying homework. Okay, bye bye students.